हेलो माय रिवोल्ट फैमिली। सॉरी, अभी रिवोल्ट सिर्फ फैमिली बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फैमिली बहुत बढ़ रही है। अभी फैमिली में बहुत जल्दी रिवोल्ट के अलावा ओकिनावा उस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं, पर बस अपलोड करना बाकी है। और भी बाकी जो भी ईवी आएंगी वो सभी मैं इंक्लूड करने की कोशिश करने वाला हूँ। जैसे मैं पहले भी कहा था कि ये बस मैं लिमिटेड रिवोल्ट पे ही नहीं रखने वाला, मैं सारी जितने भी पॉसिबल होगा मैं हर गाड़ी इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो इसीलिए हाँ, वीडियोस फ़िलहाल ज़्यादा नहीं आ रही। एक वीडियो बनाने वाला था, पर वो उसमें कुछ मैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा नहीं। मीन्स जस्ट फ्रंट व्हील की बेयरिंग कैसे चेंज करनी है, तो मुझे नहीं लग रहा कुछ रॉकेट साइंस है उसमें, तो उतना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लगा नहीं मुझे, तो मैंने ज़्यादा बनाई नहीं। पर हाँ, कोई भी इशू अगर आता है तो डेफिनेटली मैं उस पर रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा। ज़्यादा कोई वीडियोस अभी बैंक की वजह से कोई मिल नहीं रहा टॉपिक, तो जैसे मिलेगा मैं वीडियो बना दूँगा। ओके, तो चलिए, जो जो फ़िलहाल कुछ छोटे मोटे जो क्वेरीज है उन पे सोच रहा हूँ वीडियो बना दूँ। ओके, पहले कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। थिवांकर रामचंद्रन, थैंक यू सर फॉर इंफॉर्मेटिंग वीडियो, वेरी यूजफुल विद दिस वीडियो। विद दिस वीडियो आई एम वेरी यूजफुल। ओके, थैंक यू रामचंद्रन जी। मेरा इंटेंशन यही है कि आई वॉन्ट टू रियली हेल्प एवरी वन, and the thing is that I'm really happy that I'm able to help you out. So your motivation is really like, I appreciate your motivation, and that is the thing which really inspires me to make more videos, and definitely I'll be making more videos in future. Okay, so Justin 86N, my Revolt bike is rejecting Bluetooth pairing of Revolt app, so I cannot pair and change the sound of the bike. Any suggestion what this problem from the day one? Actually, this shouldn't happen normally, cause like you can do one thing, like there might be, I'm sure that there might be some problem with your app, cause otherwise you can do one thing. Now you can try to install the app in another phone, and from there you can try to like connect it through that, so that you will come to know. Cause whenever you install this application in the phone, there are some kind of permissions are required, so somewhere you might have denied some kind of permission, and that's why it's not able to get connected. And from your Bluetooth list, please check your Bluetooth list. If you are having like sometimes it happens that the Bluetooth list might be full, so that's why it might not be getting connected. So like, until and unless I see the error personally, I won't be able to help you much. But the thing which I can like you suggest is that you can try to check the permissions and allow whatever permissions are required. Just allow each and every permission which is required in the background. And still, if you face the problem, then you can do one thing. You can try to install the app in another phone and then try to connect it from there. And if the problem is solved, then obviously that clearly means that okay, your handset is having the problem, so you can get it rectified like that, and then later on it will be solved. And still, if you face any problem, then definitely you can get back to me. Just try to make a video of the problem, whatever problem which you're facing, so that I'll be able to understand in much better way. Cause like, obviously even I am a newbie, so I'm trying to figure out what are the problems I'm trying to learn. So like, even I require some kind of more details. I'm not that expert, so please, if it's possible, then provide me some kind of full details. Okay, and okay, that is the thing. So I'll come to a different question. Super sir, you are the revolt guiding star. Thank you very much, really, I appreciate it. uh, Really, I've never thought that okay, I will be able to help so many people. So thank you very much. Yeah, and please keep supporting me and keep on sharing my videos, so that other peoples will also get benefit from that. द प्रॉब्लम ए बी रेडी का साइन आ रहा है पर गाड़ी आगे नहीं जा रही। भाई, मैं रिवोल्ट बाइक जब चालू करता हूँ तब एक्सेलरेट द कमेंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। ओके, तो मिस्टर ए बी जी, एक्चुअली आपका जो प्रॉब्लम जो है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो मैं एक सजेस्ट करूँगा, मतलब ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये जो है ये सजेशन मेरा सबके लिए है कि प्लीज़ आप
पॉसिबल हो तो एरर का कुछ वीडियो वगैरह बना के मुझे शेयर किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि क्या दिख रहा है डैशबोर्ड में, कोई एरर आ रहा है या नहीं। तो वो होगा तो इट विल बी मच बेटर, मतलब मैं और अच्छे से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मुझे भी थोड़ा डिटेलिंग लगती है, तो आप प्लीज़ बताइए। फिर भी देखिए, अगर कुछ मीटर में कुछ एरर आए तो प्लीज़ बताएंगे तो बेटर होगा, कि कौन सी लाइट जल रही है या कुछ एरर कोड दिखा रहा है क्या, तो फिर मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। आई थिंक सो मैंने आप जो प्रॉब्लम बोल रहे हो प्रॉब्लम मैं देख चुका हूँ शायद से। एक तो प्रॉब्लम जो है उसमें येलो लाइट जलती है इंडिकेटर पे, तो येलो लाइट जब जलती है तो कंट्रोलर का एरर है वो। एक येलो आई थिंक सो मैं शेयर करूँगा वो एरर कैसा होता है, पर वो कंट्रोलर का एरर है। तो कंट्रोलर का एरर अभी फ़िलहाल तो मेरे पास वो गाड़ी ऐसी कोई आई नहीं जिसका कंट्रोलर का एरर आया होगा, तो मैं खोल के रिपेयर कर सकता हूँ अगर बाई चांस मेरे पास आती है तो। पर आइडिया है मुझे कि कंट्रोलर का एरर है, या फिर कभी कभी जो मोटर का हॉल सेंसर होता है उसका भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल, मतलब आप वो रिपेयर नहीं कर पाओगे। अगर मोटर का अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप नहीं कर पाओगे घर पे, उसके लिए आपको वो सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा जो है, कभी कभी ऐसा होता है प्रॉब्लम कि व्हील थोड़ा सा स्पिन होता है और रुक जाता है, तो उसमें कंट्रोलर का इशू होता है मोस्टली, कि उसमें जो कंट्रोलर में 3 वायर्स होती है, एक येलो, रेड और एक ब्लैक आई गेस। तो ब्लैक या ब्लू होती है, तो 3 वायर्स होती है सीक्वेंस में। तो उनमें से कोई एक वायर का जो है आपको मल्टीमीटर से चाहिए तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, मतलब वो कर सकता हूँ मैं। तो आई विल डू दैट, मैं एक उससे रिलेटेड है जो है उस पर एक वीडियो बना दूंगा, तो डोंट वरी। थोड़ा वक्त जाएगा पर कर देता हूँ मैं अभी मतलब रिवॉल्ट पे नहीं करके बताऊंगा, पर ओकिनावा प्रेस वगैरह जो है उस पर खोल के आपको बता दूंगा कि किस तरह करना होता है, तो वो हो जाएगा। पर उससे पहले प्लीज़ आप मेरा मेल आईडी ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में दिया है मैंने, तो वो पॉसिबल हो सके तो आप मुझे ज़रा वीडियो ज़रा शेयर कर लीजिए, या पूरा पूरा ज़रा प्रॉब्लम ज़रा डिस्क्रिप्शन में भेज दीजिए, ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, आई एम सॉरी। इसके अलावा जो है शेखर पुमेडकर जी ने पूछा था, आई हैव डाउट फॉर दोज हु हैव ब्रॉट बाइक इन द MRP प्लान EMI, if they use the bike, use this method and disconnect the immobilizer, then how is Revolt going to stop their bike if they don't pay EMIs? ठीक है, ये जो है इनका सवाल जो है, ये सवाल ऐसा है कि मैंने वो टेक्निक बताई है, और अभी मेरी वीडियो देख के बहुत सारे लोगों ने, मैं चेक किया कि बहुत सारे चैनल्स ने अभी वो बताना चालू किया कि कैसे बाइक को जो है इमोबिलाइज़र बाईपास करके ऑन करना है। तो अच्छा है, चलो लाइक मैं नहीं कहूँगा कि कॉपी कर रहे हैं, बट ठीक है, मतलब मुझे कोई ना कोई कॉपी नहीं कर रहा पर फॉलो कर रहा है, और मुझसे कोई सीख रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। तो आई होप आई डोंट माइंड एट ऑल। ठीक है, आप अच्छी बात है, आप करिए। मुझे कोई भी कैसे भी किसी से भी कहीं पे भी हेल्प मिल जाए, आपको हेल्प मिल रही है, वो मेरे लिए बहुत एक बड़ी बात है। तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जिसको भी मेरे वीडियोस वगैरह शेयर करने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, एनीवेज आई कम टू द पॉइंट कि इनका ये पॉइंट ये है कि जिन्होंने MRP प्लान में अगर लिया हुआ जो EMI पे, तो क्योंकि मुझे भी पता है ये लेते वक्त, आई थिंक मैं गाड़ी लेने से पहले मैंने भी एक ऐड देखी थी या कहीं पे तो देखा था कि रिवॉल्ट का ये प्लान है कि अगर कोई EMI अगर पे नहीं करता तो हम वहाँ से लॉक कर देंगे, फिर गाड़ी आपकी यूज़ नहीं कर पाओगे वगैरह वगैरह, ये जो भी है। देखिए, मैं टेक्निकली मैं गाड़ी को ओपन किया, हर चीज़ मैं कर चुका हूँ, इसलिए बताता हूँ कि फ़िलहाल तो रिवॉल्ट के पास ऐसा कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है जिसके थ्रू ये वहाँ से गाड़ी को बंद कर सके। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। ये कब हो पाएगा, जब स्वाइप टू स्टार्ट जब आ जाएगा ऑप्शन, तभी की बात है। तब वो वहाँ से जो है बंद कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं गाड़ी को, पर तब तक नहीं। और उस वक्त वॉच भी चालू हो जाएगा, क्लॉक जो है गाड़ी का चालू हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी जो है, मतलब आपकी नहीं, सबकी गाड़ी, हमारी जो रिवॉल्ट है ये ऑनलाइन कनेक्टेड हो चुकी है, ऐसा समझ लीजिए।
फ़िलहाल नहीं कनेक्टेड हुई है, ठीक है। और पर मेरे मन में एक सवाल था कि जिन्होंने RV400 लिए उनका ठीक है, चलो मान लेते हैं MRP प्लान वो बंद करने वाले हैं, क्योंकि इसमें इमोबिलाइज़र वगैरह दिया हुआ है, रिमोट दिया हुआ है, स्वाइप टू स्टार्ट का बोला है उन्होंने। अब करीबन 2 साल 3 साल होने आए, अब तक तो नहीं आया। तो एनीवेज, तो जिनके RV300 वो कैसे लॉक करेंगे, क्योंकि RV300 में रिमोट लॉकिंग नहीं है, वो पूरी मैनुअल गाड़ी है, तो वो गाड़ी को कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये जो कुछ उन्होंने कहा था वो सच नहीं है। वो कहीं से मोबाइल से, मुझे नहीं लग रहा वहाँ से कुछ लॉक भी करेंगे, क्योंकि है मतलब जो भी है, मैं ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना चाहता, पर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो वहाँ से लॉक भी करेंगे। अभी तक तो फ़िलहाल तो नहीं, पर इन फ्यूचर में भी हो सकता है, पर मुझे डाउट है कि कोई ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि इमोबिलाइज़र और ये जो GPS जो है, ये दो अलग अलग पार्ट है, और ये दो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं पूरी तरह से, तो इसीलिए नहीं वैसा कुछ होगा नहीं, ऐसा है। और शायद मुझे लग नहीं रहा कि इनको कोई हक होगा। बेसिकली मुझे तो यही लग रहा है कि आप EMI पे नहीं करोगे, बैंक वाले आएंगे, क्योंकि रिवॉल्ट वालों का पैसा नहीं जा रहा है इसमें, इसमें बैंक वाले का पैसा जा रहा है। तो बैंक वाले आपके घर पे आएंगे, जैसे बेसिकली आपकी दूसरी बाइक का आप EMI नहीं भरते हो, तो जो करते हैं वही आपके साथ वो सुलभ करेंगे। तो और कुछ मुझे लग नहीं रहा। तो एनीवेज, bro, if I upgrade to LiFe PO4 battery will get more range. Okay, इट्स मी वसीर। सो बेसिकली वसीर जी ने पूछा हुआ है कि अगर ये लाइफ पो 4 जो बैटरी सेल्स आती है, वो अगर अपग्रेड करेंगे तो ज़्यादा रेंज मिलेगी क्या। देखिए, लिथियम में बहुत सारे आती है, एक लिथियम आयन आती है, लिथियम फॉस्फेट आती है, और ये जो आप बोल रहे हैं लाइफ PO4, ये जो लिथियम फॉस्फेट है, लिथियम फॉस्फेट की मैं बैटरी खुद मैन्युफैक्चर कर चुका हूँ, तो अच्छी है बैटरी। इसकी लाइफ भी ज़्यादा है। एडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा सेफ़ है। लाइफ PO4 जो है ये ज़्यादा सेफ़ है, और प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर लाइफ ज़्यादा है, और गवर्नमेंट भी ज़्यादा ये इंकरेज कर रही है सबको कि लाइफ PO यूज़ करें, PO4 जो है लिथियम फॉस्फेट जो है बैटरी, ये यूज़ करें, क्योंकि लिथियम फॉस्फेट जो बैटरी जो है, मैंने उसका बहुत ज़्यादा सेफ्टी टेस्ट कर चुका हूँ, तो ये लिथियम से ज़्यादा सेफ़ है। पर इश्यू ये होता है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लिथियम फॉस्फेट जो है ना, इसका डेंसिटी थोड़ा कम है, मतलब पावर जो है थोड़ा कम है। तो एनीवेज, मैं ज़्यादा टेक्निकल में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे सवाल पूछे, मैं आपको पूरा डिटेलिंग बता दूंगा कैसे सेल्स वगैरह वर्क करते हैं। ये लिथियम फॉस्फेट में क्या डिफरेंस है, लिथियम आयन में क्या डिफरेंस है, सब कुछ। तो बेसिकली मैं इतना बताना चाहूँगा कि लिथियम फॉस्फेट का जो सेल जो है वो आता है करीबन 3.2 वोल्ट का आता है, 3.2 वोल्ट का, और 6000 mAh का बैटरी आता है, मतलब 6 Ah का एक सेल आता है नॉर्मली। और यही अगर आप लिथियम आयन में जाते हैं अगर, तो लिथियम के अंदर एक जो सेल जो रहता है, इसका वोल्टेज जो है वो 3.7 है, ठीक है, 3.7, और उसका नॉमिनल जो एम्पेयर जो आता है वो है करीबन मैंने जो देखा है 2200 mAh का आता है, मतलब 2.2 Ah पकड़ सकते हैं। और अच्छा वाला अगर लोगे तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे 5000 Ah का कुछ आता है। तो उस वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि लिथियम फॉस्फेट अगर यूज़ करेंगे तो रेंज ज़्यादा मिलेगी, नहीं, मतलब वो देखिए, रेंज अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको ज़्यादा एज के सेल्स यूज़ करने पड़ेंगे, बस इतना ही एक है। फिर वो कोई भी आप यूज़ करो, लिथियम आयन यूज़ करो, लिथियम फॉस्फेट यूज़ करो, कोई भी यूज़ करो, बस इतना है कि आपको जो है रेंज ज़्यादा चाहिए तो आपको ज़्यादा AH का बैटरी पैक उसमें लगाना पड़ेगा। तो वो साइज़ के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कितने सेल्स बैठते हैं, वो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मे बी अगर ज़्यादा सेल्स वाला अगर हम बैटरी पैक बना सके तो मे बी ज़्यादा बैटरी डालेंगे तो ज़्यादा रेंज मिल पाएगा। तो लेकिन डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है लिथियम और इसमें, लिथियम फॉस्फेट में, बल्कि थोड़ा सा कम है। लिथियम का अगर आप लिथियम फॉस्फेट अगर लेते हो तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ 1% का जो है डिफरेंस आता है, क्योंकि डिस्चार्ज रेट जो है ना, वो लिथियम फॉस्फेट का थोड़ा सा जो है ना, लिथियम फॉस्फेट का डिस्चार्ज रेट जो है वो कम है, और लिथियम आयन का डिस्चार्ज रेट ज़्यादा है थोड़ा, तो वो इशू है। ओके,
इसके अलावा जो है एक मिनट, अगर बैटरी का प्लग निकाल दे तो ये तो अभी तक आपने बताया नहीं। हाँ वो तो बताया, ठीक है। अभी मैं ओके, एक और एक आया हुआ है। आई एम द ओनर ऑफ RV400, हैव बीन यूजिंग द बाइक फॉर मंथ एंड हैव सो फार एंजॉयड द क्वाइट राइड. I do have issues with the app. The app does not capture the GPS and shows GPS location. I doubt that GPS device in my bike is activated. Do you know if it's possible to check whether GPS could latch on the satellite? Is there any indicator in the GPS module that could be checked to see if the GPS is working or not? Appreciate if you can do a video on GPS module connectivity and my Revolt app. ठीक है, तो बेसिकली जो आपने कहा हुआ है, तो ओके, तो बेसिकली जो है आपका प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गया क्या है क्या नहीं, पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि आपका जो आपने कहा कि कनेक्ट नहीं हो रहा. देखिए कनेक्ट नहीं हो रहा, मुझे तो मतलब डाउट है. अगर आपकी गाड़ी आप माई रिवॉल्ट ऐप के अंदर देख रहे हैं, दिख रही है अगर आपको, तो बेसिकली आपका जीपीएस जो है कनेक्टेड है. हाँ ये बात अलग है कि रिवॉल्ट का जो है जीपीएस सिग्नल बहुत कम आते हैं, क्योंकि एंटीनास उतनी पावरफुल नहीं है जैसे चाहिए. क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है, मैं बताना नहीं चाहता, पर है थोड़ा वायरिंग का इशू हो सकता है, तो आप चेक कर लीजिए. पर जीपीएस अगर आपका, वैसे क्लाउडी वेदर में रिवॉल्ट का जो है जीपीएस नहीं पकड़ता. क्लाउडी वेदर हो गया तो जीपीएस का बहुत इशू होता है, या फिर आप कहीं पे पार्किंग करते हो शेड के अंदर तो भी जीपीएस का इशू आ जाता है. तो ऑब्वियसली वो जीपीएस एंटीना का इशू हो सकता है, पर उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते फ़िलहाल तो. क्योंकि अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन होगा तो आपको वारंटी वॉइड हो सकती है. तो आई नो वी कैन डू इट, पर नहीं कर सकते फ़िलहाल तो. लाइक इतना ही मैं कहूँगा कि नहीं कर सकते. तो फिर भी देखिए ऐसा कुछ नहीं है ऐप वगैरह जिसके थ्रू पता किया जा सके कि आपका जीपीएस मॉडल वर्किंग है या नहीं. पर हाँ एक काम कीजिए, नीचे जो है आप RV400 लिखा हुआ है, जैसे आप साइड पैनल खोलते हैं लेफ़्ट साइड का, तो वहाँ पे RV400 लिखा हुआ आपका जो साइड पैनल है, उसके ऊपर दो वायर्स हैं. वो वायर बराबर कनेक्टेड है या नहीं वो चेक कर लीजिए. अगर वो कनेक्टेड है तो समझ लीजिए कि आपका जीपीएस एंटीना ठीक है कनेक्टेड है. बाकी जीपीएस का तो बता नहीं सकते, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस है जिस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं शेयर कर सकता. ओके, तो यहाँ पे ही मुझे लग रहा है आज मैंने इनफ इंफॉर्मेशन दे दी है. फिर भी अगर आपका कोई और अगर इशू होता है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछिए, बताने के लिए मैं हूँ यहाँ पे आपका जवाब देने के लिए. एक ये थी मेरी मतलब समझ में नहीं आया था एक बात, कि मैं जब देख रहा हूँ कि मेरी वीडियोस जो है वो देख रहे हैं, पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि सब्सक्राइबर जो है वो कम है. वीडियोस देख रहे हैं आप अगर, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा. देखिए मतलब जैसे मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब 54%, और जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे पर सब्सक्राइब नहीं किया वो 46% है. तो ठीक है चलिए, जैसे भी आपकी मर्ज़ी, मतलब कुछ है. मैं नहीं जानता कि आपने क्यों सब्सक्राइब नहीं किया, पर एक रिकमेंड करूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी है मैं लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ इन्फॉर्मेटिव, वो आपको पता चले और वो मिले. देखिए सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाने वाला नहीं है, पर हाँ ठीक है, मुझे थोड़ी इंकरेजमेंट मिल जाती है जब कोई सब्सक्राइब करता है, तो इसलिए. तो एनीवेज फ़िलहाल के लिए तो इतना ही है. इसके अलावा आपका कोई और इश्यू है तो प्लीज़ बेझिझक होकर पूछिए. अगर कुछ चीज़ें अगर होती है, आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट्स में पूछिए. अगर ज़्यादा अगर फिर भी आपका, मैं अगर जो भी कमेंट्स में आपका जवाब देता हूँ Q&A में, तो वो अगर आपको ठीक ना लगे, आपको फिर भी अगर वो सेटिस्फाइड ना हो उसमें, तो आप मुझे फिर बोलते हैं कमेंट्स के बाद आप मेल पे आइए और मेल पे मुझे वीडियो शेयर कीजिए. ठीक है, तो वो ये कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मुझे आइडिया आ जाएगा कि आपका सवाल क्या है, तो कर सकता हूँ मैं आपको तभी हेल्प कर पाऊँगा. ठीक है, तो एनीवेज फिर ज़्यादा लेंथी वीडियो ना बनाते हुए मैं यहीं पे फ़िलहाल वीडियो जो है एंड करता हूँ. कि थैंक यू सच में आपके सपोर्ट के लिए.
आई होप कि हमारे साथ इसी तरह चलते रहेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँ, यही मेरा इंटेंशन है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि और कोई मिले तो मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। प्लीज़ तब तक के लिए ड्राइव सेफ और ऑलवेज़ वेयर अ हेलमेट, ठीक है। तो देखते हैं, और ज़्यादा चैनल्स लाने की कोशिश करूँगा मैं इन फ्यूचर, और ज़्यादा वीडियोस लाऊंगा और ज़्यादा प्रॉब्लम ऐड करूँगा मैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर किसी का मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो प्लीज़ कमेंट्स में फिर से एक बार मुझे सवाल पूछ लीजिए, तो मैं जवाब दे दूँगा। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं और उतना वक्त नहीं मिलता, तो वो मिस हो जाते हैं। मैं भी एक इंसान हूँ। आई होप, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।